Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, my dear friends. Can you hear me? Yes, all good connections. Yes. Today's technical problem was my daughter wanted to come along with me to the studio. My daughter is 2 years old and she was like, नहीं ममा के साथ मुझे जाना ही है. Actually, I would have taken her along, but अभी उसका breakfast time होता है. Yes, okay. Okay. Somehow convincing them and then leaving the house is a big, big, big task for me. Okay. All good? Yes. Okay. The amendments that we shall be discussing today are related to tax invoice. Now understand, my dear friends. Okay? Yes. So हम आज क्या करेंगे? टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड, रिटर्न्स और ई वे बिल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आज कवर करेंगे. देन विल बी लेफ्ट ओनली विद वन लास्ट चैप्टर ऑफ अमेंडमेंट्स, दैट इज रजिस्ट्रेशन. वो हम कब कंप्लीट करेंगे? कल. एंड देन फ्रॉम मंडे विल बी सॉल्विंग एमसीक्यूज विथ रिगार्ड्स टू जीएसटी. ओके? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया है दैट विल बी कमिंग विथ अ स्मॉल सेशन विथ रिगार्ड्स टू हाउ टू प्लान द स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. ओके? यस, द लिंक फॉर द सेम शैल बी शेयर्ड विथ यू and then you can join along, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि how you have to manage your time, plan your studies so that in the upcoming examination which is planned in the month of August. Okay, so we have ample amount of time. If we make the best use of this time, we can get absolutely amazing marks in this paper. Okay? Yes. Now, tax invoice. Okay, amendments related to tax invoice. What are the amendments related to tax invoice? Okay, now from 1st of January 2021, okay, 1/1/21 से e-invoicing mandatory कर दिया है. Now what is meant by e-invoicing? Understand what is meant by e-invoicing, my dear friends. Okay, yes, e-invoicing means what? The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by government on the recommendations. Yes, I think. यस आई नो बीच में आवाज चला गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देती हूँ. द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. ओके, सो यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैज बीन क्लियरली टोल्ड टू अस हियर, इट हैज बीन क्लियरली टोल्ड टू अस. ओके, यस. नाउ क्या बोला गया है कि कुछ रजिस्टर्ड पर्सन्स हो, फोकस, कुछ जो रजिस्टर्ड पर्सन्स है on the recommendations of the council by including such particulars contained in form GST INV 01 after obtaining an invoice reference number by uploading information on the common GST electronic portal. मतलब क्या है? What do they want to say? कि आप पहले आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे क्या करो? अपलोड करो, फिर वहां से आपको इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा. दैट इज ई इनवॉइसिंग शैल बी इशूड. डू यू अंडरस्टैंड? e-invoicing shall be done. Okay, now ये समझ गया what is the provision of the law. Now let us understand the provision of the law in simplified language, my dear friends. Okay, yes, what does it mean? उनका क्या कहना है कि अगर कोई registered person, focus my dear friends, क्या बोला है कि अगर कोई registered person, so question number 1 arises. E-invoicing is applicable to whom? Come on. E-invoicing is applicable to whom? E-invoicing is applicable to registered persons. Is applicable to registered persons. No problem. Okay, तो e-invoicing किसको applicable है? registered person. registered person को e-invoicing लेना पड़ेगा. अब ये registered person सारे registered persons? No. आगे उन्होंने क्या बोला है? whose aggregate turnover in any financial year, previous financial year,
इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18. ओके, मतलब क्या आपको आपके पिछले साल का टर्नओवर देखना है. ओके, अंडरस्टैंड, आपको आपके पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है. सो व्हेन वी स्पीक ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर विच यू हैव टू रेफर टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर माय डियर फ्रेंड्स. इन दैट केस हमने कहाँ पे देखा है? एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम पे, जहां पे लिमिट कितना है? 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख. 150 lakhs for normal assessee, right, who wants to go for composition scheme. 75 lakhs for those assessee who are in special states, and 50 lakhs in case of service providers. Okay, yes, तो उनका अगर aggregate turnover preceding financial year का इन लिमिट्स तक होगा तो ही वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे उनका क्या कहना है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है, उसको ही इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, उसको ही ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, मतलब अंडरस्टैंड, उन्होंने वर्ड्स यूज्ड आर व्हाट? मोर देन 500 करोड़. More than 500 crores, मतलब up to 500 crores. If your turnover, my dear friends, if the preceding financial year turnover is even 500 crores, तो क्या आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी है? नो. बट 500 crores से बढ़कर अगर 1 रुपया भी होगा तो इज इनवॉइसिंग मैंडेटरी? यस. Okay, so registered persons whose aggregate turnover in any preceding financial year is more than 500 crores, then in that case you have to go for e-invoicing. Okay, this is first provision. Second, उन्होंने क्या बोला है? For export. कहीं पे भी उन्होंने बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? नो. आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी. आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी. कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स. ओके, यस. सो ई इनवॉइसिंग जो है वो कब से एप्लीकेबल कर दिया गया है? 1 जनवरी 2021 से. ओके, नाउ फोकस. ओके, ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी टू होम? रजिस्टर्ड पर्सन्स. ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स? नो. Only those registered persons whose aggregate turnover in preceding financial year is more than 500 crores. उनके लिए ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी. सेकंड कैटेगरी क्या है? जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी. ओके, शैल प्रिपेयर इनवॉइस एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रूल 48(4). मतलब क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो ऑन द इलेक्ट्रॉनिक GST पोर्टल, राइट. मतलब अपना जो GST पोर्टल है, GSTN है. ओके, यू हैव टू गो देयर. देन वहाँ से आपको इनवॉइस का इन्फॉर्मेशन डाल के वहाँ से आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, राइट. एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग मीन्स डॉक्यूमेंट विथ QR कोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस QR कोड? QR कोड मतलब क्या? जैसे कि अगर आपने मॉल्स में शॉपिंग करी होगी तो क्या होता है ना, हर प्रोडक्ट का जो प्राइस टैग होता है उसके ऊपर देयर इज अ कोड, राइट. देन यू हैव टू स्कैन दैट कोड, तो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. सेम व्हाट्सएप वेब में क्या होता है, राइट. यू कैन कनेक्ट योर व्हाट्सएप विच इज ऑन फोन विथ व्हाट? with your desktops, right, with your laptops. How? with the help of the code which is given. Okay, तो क्या हो जाता है? व्हाट्सएप का आपका जो भी इंफॉर्मेशन फोन में है वो आपको आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में दिखता है. करेक्ट? यस और नो? इन द सेम वे उनका क्या कहना है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, रजिस्टर्ड पर्सन हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, या तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इन दैट केस ई इनवॉइसिंग आ जाएगा. दैट इज डॉक्यूमेंट विथ QR कोड. ओके, यस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग हैं जिनको ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स. क्या बोला है? कुछ लोग हैं जिनको ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. ओके, क्या किया है? एग्जेम्प्ट मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इवन इफ इज मोर देन 500 crores, तो इन लोगों को ई इनवॉइसिंग करना जरूरी नहीं है, करना मैंडेटरी नहीं है. अब ऐसे कौन कौन हैं जिनको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी नहीं है? फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज. ओके, इंश्योरेंस कंपनीज तो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, राइट. एंड बैंकिंग एनबीएफसी का मेन काम ही है पैसे में डील करना. ओके, यस. नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर.
ओके मतलब ट्रांसपोर्टर, चाहे आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हो, चाहे आप पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट करते हो, इट इज नॉट, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल. सिनेमा हॉल्स एंड OIDAR सप्लायर. व्हाट इज OIDAR सप्लायर? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज. ओके यस, व्हाट डज दिस मीन? जो हमको ये से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई सीरीज देखनी है जो USA में स्ट्रीम हुई है, ओके इन दैट केस व्हाट हैपेंस, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई गो टू नेटफ्लिक्स, आई मेक द पेमेंट टू नेटफ्लिक्स एंड देन आई हैव एन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर सीरीज, राइट? तो जो मैं पेमेंट कर रही हूँ, दिस नेटफ्लिक्स इज व्हाट? नेटफ्लिक्स इज लाइक एन एग्जाम्पल फॉर OIDAR सप्लायर्स, ओके एंड SEZ यूनिट्स. क्या हमको ये याद करना जरूरी है? बिल्कुल हाँ, 100% इस पे एग्जाम बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज इट्स लेटेस्ट अमेंडमेंट. ओके तो इन लोगों को ई इनवॉइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ एग्रीगेट टर्नओवर in preceding financial year is more than rupees 500 crores. फिर भी आपको ई इनवॉइसिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. कौन कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग NBFCs, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर, सिनेमा हॉल, OIDAR सप्लायर एंड SEZ यूनिट्स ओके यस. तो ये हुआ ई इनवॉइसिंग वाला पार्ट. ओके अब अगर हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला है? रजिस्टर्ड पर्सन को ये एप्लीकेबल है. किसको है? रजिस्टर्ड पर्सन को ये एप्लीकेबल है. अंडरस्टैंड? ओके तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई सप्लाई करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, सो दिस बिकम्स B2B सप्लाई. दिस बिकम्स B2B सप्लाई. B2B सप्लाई मतलब क्या? मैंने हर बार बोला है, आज भी बोलती हूँ. B2B सप्लाई मतलब क्या? मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करती हूँ, वो पर्सन आगे सप्लाई करने वाला है. ओके वो कंज्यूम नहीं करने वाला, वो आगे सप्लाई करेगा. दैट मीन्स द सर्कल ऑफ सप्लाई, द सर्कल ऑफ ITC इज गोइंग टू कंटिन्यू अहेड. उसको कहा जाता है B2B सप्लाई. ओके B2C मतलब क्या? मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने आपको सप्लाई किया, आपने वो कंज्यूम कर दिया. ओके आपने आगे सप्लाई नहीं किया, आपने उसको आगे सप्लाई नहीं किया. ओके दैट इज नथिंग बट B2C सप्लाई, बिजनेस टू कस्टमर. डू यू अंडरस्टैंड? ओके B2C सप्लाई. ओके मतलब क्या? B2B में अगर मैं बात करती हूँ तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 500 crores. ओके अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आउटसाइड इंडिया अगर सप्लाई करता है, ओके इन दैट केस एक्सपोर्ट हो जाएगा. इन दैट केस ऑल्सो इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 500 crores, ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी. अदरवाइज ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी. ओके अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 500 crores है तभी आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा. ओके अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो तो ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी. बट इनवॉइसेस में क्या होना चाहिए? डायनेमिक QR कोड होनी चाहिए. मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, उस कोड को स्कैन करके बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आ जानी चाहिए विद रिगार्ड्स टू गुड्स. ओके यस तो ये प्रोविजन दिया गया है विद रिगार्ड्स टू ई इनवॉइसिंग. अब और एक अमेंडमेंट कर दिया गया है विद रिगार्ड्स टू HSN code. What is HSN code? Harmonized system of nomenclature. Nomenclature means what? Naming ceremony. Understand my dear students? Understand? नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? नेमिंग सेरेमनी. जैसे कि हमारे फैमिली में अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो देर इज अ नेमिंग सेरेमनी, राइट? इन द सेम वे देर आर सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज, right अब डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज. अंडरस्टैंड ओके कोई है जैसे कि अब टीचर को कितने अलग अलग नाम है समझो. हाँ देयर इज अ टीचर, देन प्रोफेसर भी कहते हैं, देन अकेडमिशियन भी कहते हैं, करेक्ट, देन ट्यूटर भी कहते हैं, राइट. अब आजकल लोग मेंटोर भी कहते हैं. सो देयर आर सो मेनी नेम्स विच आर यूज्ड फॉर वन प्रोफेशन, दैट इज टीचर. ओके तो अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या बोलता है कि अब सी अंडरस्टैंड आपका जो सप्लाई है, आपका जो सप्लाई का नेचर है उसके हिसाब से हम आपको GST का परसेंटेज चार्ज करेंगे, राइट. अब आपका कौन सा सप्लाई है, आपका नाम क्या है, अंडरस्टैंड. ओके आपके सप्लाई का नाम क्या है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी विल गिव अ कोड टू इट. हम उसको क्या देंगे? हम उसको कोड देंगे. ओके और उस कोड के बेसिस पे फिर आपका कोड है क्या? आपका कोड क्या है सर? मानो कि आपका कोड है H5001. ओके मानो आपका कोड है H5001. फिर चाहे आपको कोई टीचर बोले, चाहे आपको कोई प्रोफेसर बोले, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, हार्मोनाइज्ड सिस्टम. हार्मोनाइज मतलब क्या? यूनिफाइड.
ओके मतलब क्या, आपको अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को पढ़ाता है तो वो H5001 कोड में कवर हो जाएगा, चाहे उसको कोई मोना शोना टोना कुछ भी बुलाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमने जो नाम डिसाइड किया है, हमने जो कोड दिया है, वही एप्लीकेबल हो जाएगा। स्वाहा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज मेंट बाय हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब उनका क्या कहना है, जीएसटी लॉज क्या कहते हैं, हमने हर गुड्स को, हर सर्विसेज को एक कोड दिया है, राइट। अब उनका क्या कहना है कि इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 crores। अब बेसिकली वो HSN कोड से क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम ये HSN कोड इनवॉइस में मेंशन करें। ओके, इनवॉइस में हम इसको मेंशन करें। ओके फाइन। ओके, आपका जो गुड्स है, आपका जो सर्विसेज है, हम इनवॉइस में मेंशन करें। ओके यस। अब उनका क्या कहना है कि जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है, उनको क्या है, उनको 4 डिजिट्स का HSN कोड अपने इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ओके सॉरी, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 6 डिजिट्स का HSN कोड अपने इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। सी HSN कोड मतलब क्या, जो कोड आपको दिया गया है, ओके किसने कस्टम GST लॉज ने, राइट। GST लॉज ने जो आपको कोड दिया गया है उसको HSN कोड कहा जाता है। ओके अब क्या बोलता है GST लॉज, आपको हमने कोड दिया है ना, आपको हमने आइडेंटिफिकेशन दिया है ना, तो आपको आपके इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा HSN कोड। ओके अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 5 crores है तो आपको HSN कोड 4 डिजिट्स का मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर पिछले साल में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट्स का HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। ओके फाइन, ये तो हम समझ गए। ठीक है, हमको जो हमारा जो नामकरण जीएसटी ने किया है कोड के फॉर्म में, वो हमको हमारे इनवॉइस में मेंशन करना है, समझ गए। अब अगली बात, नाउ अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके अब उनका क्या कहना है कि क्या सबको अपने इनवॉइस में ये मेंशन करना है? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो HSN कोड इज मैंडेटरी, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है देन मेंशन ऑफ HSN कोड इज ऑप्शनल। मतलब B2B सप्लाई में मैंडेटरी, B2C सप्लाई में ऑप्शनल। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस ओके। तो हमने क्या देखा, ई इनवॉइसिंग अगेन रेफरेंस टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। ओके एक तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या तो आप एक्सपोर्ट में कवर होने चाहिए। ओके इन दिस केस आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, मतलब आपको क्यूआर कोड के साथ आपका इनवॉइस देना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा, यू गो ऑन द GST पोर्टल, वहां पे आपका इन्फॉर्मेशन डालो, ओके वहां से इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, ओके विच इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बाय द सिस्टम। ओके यस, किसको मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी नहीं है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, HSN कोड ओके ये अंडरस्टैंड, HSN कोड मीन्स व्हाट, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब उनका क्या कहना है, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू 5 crores, 4 डिजिट्स का HSN कोड आपको इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। इफ इट इज मोर देन 5 crores आपको 6 डिजिट्स का HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा आपके इनवॉइस में। क्लियर? ओके यस। अब मैंडेटरी किसको है, B2B दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। ओके ऑप्शनल किसको है, B2C रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये ऑप्शनल है। क्लियर एवरीवन? ओके यस, बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसमें हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आगे विथ रिगार्ड्स टू रिटर्न्स एंड ई-वे बिल, understand my dear friends, what has actually happened in this COVID situation, in this pandemic situation? Okay, the entire world came to a halt, every business came to a halt, right? मतलब practically मैं बता रही हूँ, there were no outward supplies, right? practically हमारा क्या है, कुछ बिजनेस का टर्नओवर ही नहीं हुआ, तो हमारे क्या है, कुछ there was no profit, there was no loss। हम नो लॉस तो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं, वो तो हमको इनकर करने ही पड़ रहे थे, राइट। इन दिस वे ओके, सो द एंटायर बिजनेस, द एंटायर इकोनॉमी केम टू अ halt because of this pandemic. Okay, अब
अब मानो कि मैं एक छोटी बिजनेसमैन हूँ, ओके, अ नॉर्मल बिजनेसमैन, ओके, मेरा किराने का दुकान है, ओके, मेरा किराने का दुकान है और मैं क्या करती हूँ, मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और मैं हर बार जीएसटी रिटर्न्स फाइल करती हूँ, ओके, यस। अब अगर मेरा किराने का दुकान है, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा किराने का दुकान है तो मेरा तो पैंडेमिक में सिचुएशन में बिजनेस चालू था, तो मैंने तो सप्लाई किया, ओके, और मुझे पैसे मिले हैं तो मैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल करूंगी। दिस इज वन एग्जाम्पल, ओके। मानो कि आई एम अ होटल, ओके, मानो कि आई एम अ स्मॉल होटल और मेरा कोई होम डिलीवरी का सर्विस नहीं है, ओके, एक छोटा से मानो मेरा चाय का दुकान है, ओके, यस। अब क्या हुआ इस पैंडेमिक सिचुएशन में, आई हैड टू शट माय बिजनेस, देयर वाज नो होम डिलीवरी। मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसे देखा जाए, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस चाय की दुकान को फिर बाद में कैफे में कन्वर्ट करूंगी, इसलिए मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था, एवरीथिंग, ओके, आई वाज फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स एंड अचानक से माय बिजनेस केम टू अ हॉल्ट। अचानक से माय बिजनेस केम टू अ हॉल्ट और मुझे जीएसटी लॉज बोलते हैं कि आओ मैम, आओ पीयूषा मैम, आओ और आप आपकी जीएसटी लायबिलिटीज, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करो। अब जीएसटी रिटर्न तो क्या आप और मैं फाइल नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू गो टू अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज, करेक्ट, यस, ओके। तो ठीक है, तो अब असेसीज क्या कहने लगे, अब मेरे जैसे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ओके, जिनका एक्चुअली कुछ टर्नओवर नहीं हुआ है, वो कंप्लेन करने लगे। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हम अगर किसी सीए के पास, किसी प्रोफेशनल के पास, किसी सीएमए के पास जाएंगे हमारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिना अपने फीस चार्ज किए हमारे रिटर्न्स फाइल करेंगे, राइट। मतलब एक तो बिजनेस ठप, फिर आप बोलते हो रिटर्न्स फाइल करो, फिर आप बोलते हो कि इनके प्रोफेशनल को अपने उनके फीस भी दो, हम पैसे लाए कहाँ से? इसलिए टू फाइट दिस पैंडेमिक सिचुएशन, रूल 67A was introduced. Rule 67A was introduced in which what assessee को परमिशन देती थी कि अगर आप इन सिचुएशंस में कवर होते हो तो आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाके रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप एक एसएमएस फैसिलिटी से आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो, ओके। आपको एसएमएस फैसिलिटी से आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, ओके, उस ओटीपी के जरिए आप एसएमएस से अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, ओके। बट देयर वर स्पेसिफिक सिचुएशंस। किराना दुकान जिसका आउटवर्ड टर्नओवर है, जिसका बिजनेस हुआ है, क्या उसके लिए ऑप्शन था? नहीं, ये जेन्युइनली उसके लिए ऑप्शन था जिनका एक्चुअली कुछ आउटवर्ड सप्लाईज नहीं हो पाया है, ओके, यस। सो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? लेट अस सी, फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब आज हमने जो भी देखा सारा के सारा रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल था। फर्स्ट, ई इनवॉइसिंग, सेकंड, एचएसएन कोड, थर्ड, रूल 67A, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय वे ऑफ एसएमएस फैसिलिटी, okay, yes. So for a registered person who is required to furnish nil return, inform GSTR 3B, nil outward supplies, my dear friends, nil outward supplies, inform GSTR 1, or nil statement, inform GSTR CMP 08. ओके, मतलब अगर मैं नॉर्मल असेसी हूँ, अंडरस्टैंड, अगर मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ तो आई हैव टू फाइल GSTR 3B, GSTR 1 एवरी मंथ, करेक्ट, ओके, यस। तो उनका क्या बोला है कि GSTR 1 में नील आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब आउटवर्ड सप्लाईज कुछ हुआ ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो ही आपको एसएमएस फैसिलिटी मिलेगा, ओके, यस। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, GSTR 3B का नील रिटर्न। अब नील रिटर्न आता है मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, उसमें मैंने आईटीसी का बेनिफिट लिया, उस आईटीसी से अगर मेरा नील हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअली प्रैक्टिकली आपके GSTR 3B में नील रिटर्न आना चाहिए, ओनली इन दैट केस इस नॉर्मल टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दिया गया है। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर्ड है, जिनका GSTR CMP 08 फाइल करना पड़ता है, अगर उनका नील स्टेटमेंट होगा तो उनके लिए भी ये एसएमएस फैसिलिटी एप्लीकेबल थी, okay. Furnishing of return or the details of outward supplies or statement shall be allowed to be made through a SMS using a registered mobile number, okay. आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप ये रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, वो भी बाय वे ऑफ SMS फैसिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? ओके, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 67A, ओके, यस। अब आगे नेक्स्ट इज कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने दिए हैं विथ रिगार्ड्स टू ई वे बिल,
ओके विथ रिगार्ड्स टू ई वे बिल. ई वे बिल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. ओके यस, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल. ई वे बिल कौन इशू कर सकता है? कंसाइनर, कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर. ओके अब उन्होंने क्या बोला है कि कुछ सिचुएशंस में कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, इसमें से कोई भी अगर ये डिफॉल्ट करता है, अगर फॉलोइंग डिफॉल्ट्स करता है, इन दैट केस उसका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, उनको ई वे बिल इशू नहीं कर पाएंगे. ओके फोकस. अगर कोई भी ओके सी अंडरस्टैंड, जब भी हम सामान सप्लायर से सी, अब ई वे बिल आ रहा है जैसे ओनली इन केस ऑफ गुड्स, बराबर है ना, गुड्स ही है जो हमको ट्रांसपोर्टर को देना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टर अपने रेसिपिएंट को देगा, राइट. तो कंसाइनर मतलब सप्लायर, ट्रांसपोर्टर मतलब पर्सन हु इज कैरिंग द गुड्स, और जिसको सामान मिलने वाला है उसको रेसिपिएंट या कंसाइनी कहा जाता है. ओके अंडरस्टैंड. अब कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर या कंसाइनी, तीनों में से कोई भी ई वे बिल बना सकता है. ओके यस. अब अगर ये डिफॉल्ट्स होते हैं, कौन से डिफॉल्ट हो समझेंगे. ओके अब अगर आप ये डिफॉल्ट्स करते हो, इन दैट केस कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर कोई भी ई वे बिल इशू नहीं कर पाएगा. ई वे बिल इशुएंस ब्लॉक हो जाएगा. विच आर द डिफॉल्ट्स? लेट अस अंडरस्टैंड. अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो एंड यू हैव नॉट फाइल्ड 2 quarterly statements, okay, if you are a composition dealer and if you have not filed 2 quarterly statements, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो और अगर आपने GSTR 3B नहीं फाइल किया है 2 महीनों के लिए, कॉम्पोजिशन डीलर 2 quarterly स्टेटमेंट्स आपने नहीं फाइल किया कॉन्जिक्यूटिव, ओके, तो आपको ई वे बिल इशू करने नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा. अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, आपको GSTR 3B फाइल करना पड़ता है अगले महीने के 20 तारीख को. अगर 2 महीने तक आपने नहीं पे किया तो उसके बाद आपको ई वे बिल इशू करने नहीं मिलेगा. इसके साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, सॉरी, एंड यू हैव नॉट फाइल्ड GSTR 1 फॉर 2 months or 2 quarters, ओके, सो 3 conditions. 3 conditions माय डियर फ्रेंड्स. क्या बोला है उन्होंने कि कॉम्पोजिशन डीलर, ओके, यू हैव नॉट फाइल्ड 2 quarterly statements. नॉर्मल टैक्स पेयर GSTR 3B 2 महीनों में नहीं फाइल किया. यू आर अ नॉर्मल टैक्स पेयर GSTR 1 2 महीने या 2 क्वार्टर के लिए अगर आपने नहीं फाइल किया माय डियर फ्रेंड्स, इन दैट केस आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा. इन दिस केस आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Okay, yes my dear friends. So come on, today's session was very important. Okay, क्योंकि इस पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. तो आज के सेशन में हमने क्या देखा कि टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स और ई वे बिल में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो हमने देखा. तो टैक्स इनवॉइस में अब उनका क्या कहना है कि कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, देयर आर अ सर्टेन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है. वो कौन है? वो कौन है? कम ऑन, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 crores, उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है. रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई होगा तभी ई इनवॉइसिंग आएगा. B2B सप्लाई को ही आएगा, B2C सप्लाई को ई इनवॉइसिंग नहीं आएगा. ओके यस. अब इस कैटेगरी में कुछ लोग हैं जो एग्जेम्प्ट है. वो कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग एंड NBFCs, देन SEZ यूनिट्स, OIDAR सप्लायर्स, राइट. देन और कौन कौन कवर्ड है? कम ऑन, राइट, यस, SEZ यूनिट्स है, राइट. सो ये लोग कौन है? यस, कम ऑन टेल मी. इन लोगों को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. ओके इनको ई इनवॉइसिंग, होटल बिल, राइट, जिनको होटल का बिजनेस है उनको भी, आई मिस होटल, राइट, उनको भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी एग्जेम्प्ट है. मतलब मैंडेटरी नहीं, वो एग्जेम्प्ट ही है. मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा भी हुआ तो भी आप क्या हो, आपको इनवॉइसिंग इशू नहीं करना. अब आगे HSN कोड. अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर मेरा पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो 4 डिजिट्स का HSN कोड मेंशन करना है. मोर देन 5 करोड़ है 6 डिजिट्स का HSN कोड मेंशन करना है. ओके R2R दैट इज B2B सप्लाई मैंडेटरी, B2C ऑप्शनल. ओके आगे फिर हमने क्या देखा कि जिन लोगों का यस सिनेमा हॉल भी मैंने मिस किया. राइट, वेरी गुड प्रथम. यस, I'm so proud then when you proved me wrong. Yes, come on. Yes, focus my dear friends. आगे. Yes, फिर हमने क्या देखा आगे? Yes, कि जो जिनका GSTR 1 में नील आउटवर्ड सप्लाई है, जिनका GSTR 3B में नील GST की लायबिलिटी है, जिनके GSTR CMP 08 में जिनका नील लायबिलिटी है, उनको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप SMS फैसिलिटी से GST रिटर्न्स फाइल कर सकते हो.
ओके यस। फिर इन केस ऑफ ईवेबल उन्होंने बोला है कि अगर आप ये डिफॉल्ट करते हो तो कंसाइनी ट्रांसपोर्टर का ईवेबल ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट आर द डिफॉल्ट्स? फर्स्ट, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, अगर आपने 2 क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए तो आपको ईवेबल इशू करने का राइट नहीं मिलेगा, आप इशू ही नहीं कर सकते। आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो और आपने GSTR 3 भी 2 महीने के लिए नहीं फाइल किया, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, GSTR 1 2 महीने के लिए या 2 क्वार्टर के लिए आपने कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए नहीं फाइल किया, इन दैट केस योर ईवेबल शैल बी ब्लॉक्ड। डू यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स? ओके yes, so this is all about the amendments with regards to tax invoices, returns and e-way-bill. Okay, अब एक लास्ट पार्ट रहा है, वो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ओके तो मैं ये कल कवर कर दूंगी, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व MCQs and have lots of fun. Okay, yes, so see you all tomorrow with the last session for amendments, and then we shall begin the MCQ series. Okay, bye bye and take care my dear friends. Okay, yes.